able to listen me? Hello. Hello. Are you able to listen me? Yes. Okay. In last period, we are discussing about the we have discussed about the D block elements. D block elements. We have discussed about its what do you say electronic configuration and some of the properties of this atomic radii, ionic radii, etc. We have discussed in the last period. Now let us come forward. Okay, in last period, in first period, we have discussed about the general characteristic of these D block elements. In that, we have discussed that these compound, they are colored compound. In this one, they show various types of colors. Before color, let us look at its metallic properties. We have discussed in detail metallic properties, but let us look at its physical appearance. This is the scandium. Okay, these are the two states of scandium. This is the scandium. This is the titanium. This is the vanadium. Most of them are metals. All are metals. Chromium. This is manganese. This is iron. We know. This is cobalt. This is nickel. Copper. This is copper and this is zinc. Okay. This is about the physical appearance, how it look like. Most of all of them are in first transition series. All elements, they are metals. This is scandium, this is titanium, this is vanadium, this is manganese, this is chromium, this is manganese, this is iron, this is cobalt, this is nickel, this is copper and zinc. Now we have discussed about some of the properties, general properties of D block elements. In those D block properties, can you tell me a few of the properties? Arbia, why are you disturbing the screen? Hello.
Okay. So can you tell me the few of the physical properties of this d block element first transition series? Yes. Any one of you? It is metallic property. Okay. Very good. Ductile Okay. All these properties, they are related to metals. properties. Yes. More than this, anything more than this comes under the metallic properties. All are metals, malleable, ductile, and all that. There are good conductors of heat and electricity, all that. These are properties that are included in the metallic properties. Okay. Along with that's one of the important properties there is that they are colored. Elements and compounds formed from them, they are most of them are colored, and they show variable transitions, oxidation states. They show variable oxidation state. Variety of oxidation state they are observed in case of these transition metals. Now let us look at now this is the electronic configuration of the first metal, scandium. It has 3 electrons in the outermost orbital, 4s2 and 3d1. One paired unpaired electron. Scandium 22, it has 2 unpaired electrons in this way, and vanadium, and you can go up to last. Okay. In this way, these are the unpaired electrons, how electrons they are filled in the outermost orbitals, well related with the outermost orbitals here in case of oxidation state, because we have to during the formation of variable oxidation states or cations here particularly, we have to lose the electrons, we have to remove the electrons from the outermost orbital. Okay, outermost shell, outermost orbital. So by the loss of these 2 electrons, it will achieve +2 configuration. Okay, here variable oxidation states they are observed due to presence of 4s electrons as well as 3d electrons. Electronic configuration is 4s2 and 3d1 to 10. 3d1 to 10. एक से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिलअप होना शुरू हो रहा है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 5, 6, 7, 8 और 9, ये 10, यहाँ पर भी 10. इस तरह से 2 oxidations. Why we get variable oxidation state? Because there are chances to lose the electrons. One of the chances that it may lose this outermost 4s electrons, and by losing these 4s electrons, it will achieve +2 oxidation state. ये बाहर के ऑर्बिटल के अंदर 4s जो इलेक्ट्रॉन है ये निकल जाएंगे, और निकलने के बाद ये स्कैंडियम +2 बन जाएंगे. ठीक है, एक ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, और दूसरी ऑक्सीडेशन स्टेट ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर में ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से दोनों इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो इट विल अचीव हियर +3 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, एक तो +2 हो गया और उसके साथ +3. इस तरह से इन ऑल दिस एलिमेंट्स, in all these metals you found that due to presence of lower oxidation state, it is observed due to presence of loss due to the loss of 4s electrons. जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट हो किस वजह से हासिल होती है? बाय द लॉस ऑफ 4s electrons. And higher oxidation state, it is due to the loss of 4s as well as 3d electrons.
It will come in the next slide. So they show various oxidation states. So it may undergo loss of 4s electron as well as 3d electrons. By loss of 4s electrons, it will achieve only +2 oxidation state. Okay. For higher oxidation state to achieve 4s as well as 3 electron, they are utilized. Both are remote. For example, we have seen in case of scandium, it gets changed into +2 oxidation state by losing 4s electrons. 4s2 electrons जो है वो लॉस होते हैं और ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर में आ जाता है। ठीक है, अब ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। नाउ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3 है। ठीक है, +3 के लिए दोनों चीजें यूटिलाइज होंगी। 4s इलेक्ट्रॉन्स विल बी यूटिलाइज अलॉन्ग विद दैट। एक जो इलेक्ट्रॉन है ये 4s2 इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें और 3d इलेक्ट्रॉन्स भी इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक, इस तरह से ये 4s के साथ में 3d इलेक्ट्रॉन जब इन्वॉल्व हो जाएंगे दोनों भी, इट विल गेट चेंज इनटू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। सिमिलर केसेस हियर। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह यह है कि 4s ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स और 3d ऑर्बिटल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकते हैं। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट कब हासिल होगी? जब ओनली 4s इलेक्ट्रॉन दे विल बी लॉस्ट, और उसके साथ में अगर हम 3d इलेक्ट्रॉन भी इन्वॉल्व कर रहे हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो इससे ये दो लूज करके हम कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट बना सकते हैं? यस, ये दो इलेक्ट्रॉन अगर हम लूज कर रहे हैं 4s2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट बनेंगे यहाँ पर? हेलो, +2। हाँ +2। ठीक, वेरी गुड, +2। और उसके बाद और एक चांस है कि ये इलेक्ट्रॉन भी निकाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल दिया तो बन जाएगा +3, और ये भी निकाला कर दिया +4 बन जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर +2, +3, +4। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं। मैंगनीज के अंदर में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है हमको। ठीक है, इस तरह से अलग अलग कंपाउंड्स के अंदर, अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर में आप देख सकते हैं किस तरह से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। These are the common oxidation states. ये मैंगनीज के अंदर बताया हमने। मैंगनीज के अंदर 1, 2, 3, 4, 5 या इससे भी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। ठीक, Mn2+, ये इस तरह से कलर है, Mn3+, इस तरह से कलर है, Mn4+, इन दिस वे, MnO4-, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D5, D4 है यहाँ पर, D3, यहाँ पर D1 और D0। ठीक है, Mn, ये पोटेशियम परमैंगनेट का कलर दिख रहा है हमको, वायलेट कलर, पिंक कलर जो दिख रहा है, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर। तो ठीक है, स्कैंडियम इस तरह से दो ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, +2 और +3। ठीक है, टिटेनियम में हमने देखा है अभी +2, +3, +4। ठीक है, उसके बाद वेनेडियम के अंदर +2, +3, +4, +5, 4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सब में ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ये मैंगनीज में देखने को मिलती है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, +2 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने मिलती है। क्रोमियम +2, +3, +6, +4 और +6। ठीक है, मैंगनीज के अंदर में +2 है, +3, +4, +6 एंड +7। ठीक है, आयरन के अंदर में 4 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, +2, +3, +4, +6। आउट ऑफ दिस मोस्ट कॉमन आर +2 एंड +3। ज्यादातर जो कॉमन है +2 और +3 है। ये भी पॉसिबल है, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमको देखने मिलती है वो +2 और +3। ठीक है, कोबाल्ट के अंदर में 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2, +3, +4। निकल +2, +3। ठीक है,
कॉपर के अंदर में दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक क्यूप्रस है और दूसरा क्यूप्रिक, क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक, +1 +2। जेडेन जिंक के अंदर में एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल। ठीक है, इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने देखा है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन बताया है, स्कैंडियम D1 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर D2 है, D3 है। ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम के अंदर D5 D6 D7 D8 D10 एंड D10। यहाँ पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो देखने मिल रहा है आपको +3 है स्कैंडियम के अंदर, +2 भी पॉसिबल है, कॉमन +3। ठीक है, ये +3 है। टाइटेनियम के अंदर में +2 +3 +4। ठीक है, इन दिस में कलर जो बताया हमने, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कलर के अंदर में इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट बताए हैं, जिनके अंदर में एक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, Zn+2। यहाँ पर +2 भी पॉसिबल है, +2 के साथ +3, लेकिन कॉमन +3 इसलिए +3 बताते। कॉमन 2 स्कैंडियम के अंदर में दो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखते हैं हमको, +2 भी है और +3 भी। यहाँ पर भी सेम थिंग्स आर देयर। लॉस ऑफ NS इलेक्ट्रॉन्स, ये बता रहे हैं कि ये सब NS2 यानी 4s ऑर्बिटल के अंदर में इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहे हैं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हमको मिल रहा है। ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन किस तरह से हासिल हो रही है, हाउ यू आर गेटिंग +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, बाय द लॉस ऑफ outermost 2 electrons from the 4s orbital। ठीक है, एंड लॉस ऑफ NS मींस 4s, यहाँ पर 4s और n-1 यानी 3d ऑर्बिटल। ये जो बचे हुए ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये सब इसकी तरफ यहाँ पर मार्क किया गया है। ठीक है, ये किस तरह से हासिल हो रहे हैं, बाय द लॉस ऑफ 4s एज वेल एज 3d इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये 4s के साथ में ये 4s इलेक्ट्रॉन्स लॉस होकर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आपको you have achieved that. Now in order to achieve higher oxidation state, there is loss of electron from 4s orbital. Along with that, there is loss of electron from n-1 means 3d orbit. outermost orbit कौन सी है, 4s, 4 है, 4 - 1 is equal to 3। तो 3d ऑर्बिट के अंदर में से भी इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, तो यू विल अचीव द हायर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। Okay, now whether this concept is clear to you, oxidation state? Yes, Yes, sir. okay। ऑक्सीडेशन स्टेट और उसमें के अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये कैलकुलेट करना आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि आगे की सारी चीजें इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन वगैरह है, तो ये आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, स्कैंडियम देख रहे हैं, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन स्कैंडियम में कितना, एक ही है अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक। टाइटेनियम के अंदर में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको देखने मिल रहे हैं, वेनेडियम के अंदर में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिल रहे हैं, और क्रोमियम में सभी इलेक्ट्रॉन अनपेड है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, बट दे आर ऑल आर अनपेड। in case of manganese 1 2 3 4 5 unpaired electrons. In case of iron 4 unpaired electrons, here 3 unpaired electrons. Nickel 2 unpaired electrons, here only 1 electron is unpaired. In case of copper, in case of zinc all electrons they are paired। ठीक है, इस तरह से अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं ये आपको अच्छी तरह से कैलकुलेट करने आना चाहिए, क्योंकि आगे की चीजें अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर 2 चीजें डिपेंड करती है, एक तो कलर होता है और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। कलर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर कंपाउंड के अंदर में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है तो इट विल शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है
तो इट विल नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, विल बी डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके अच्छी तरह से समझ में आना जरूरी। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड दिस concept of orbital occupancy, how electrons they are occupied in the orbital and how unpaired electron they are calculated. Now magnetic properties we have discussed in the properties, general properties of d block elements, that these compound they are colored and they are paramagnetic in nature. So what do you mean by paramagnetic? So compounds which are attracted by the magnetic field, they are called as the paramagnetic, while others which are repelled, those compounds which are repelled by the magnetic field, they are called as the diamagnetic. And compounds which this paramagnetism, it arises due to the presence of unpaired electrons. If compound is containing unpaired electron, then it will show paramagnetism. If electrons they are paired, then it will be diamagnetic. And third concept is ferromagnetism. Ferromagnetism is compounds which can be magnetized, जिसको हम magnetize भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर unpaired electrons की quantity ज्यादा है, if unpaired electrons are more, then such compound they may be treated as ferromagnetic, they can be magnetized even, जिसको हम मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। जैसे हम आयरन वगैरह देखते हैं, थोड़ी देर में हम उसको मैग्नेट के साथ में रखते हैं तो इट बिकम्स मैग्नेटाइज, उसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाते हैं। ठीक है, व्हाई इट बिकम्स फेरो मैग्नेटिक, व्हाई डज इट बिकम मैग्नेटिक? बिकॉज इट इज हैविंग मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। So substances which are paramagnetic are those in which there are unpaired electrons in the atom. ठीक, अगर एटम के अंदर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं? दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरे टाइप के कंपाउंड कौन से हैं? डायमैग्नेटिक कंपाउंड्स और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जो रिपेल हो जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ से। और तीसरा टाइप क्या है? एलिमेंट्स व्हिच आर टर्म्ड एज फेरोमैग्नेटिक, व्हिच मींस दे कैन बी मैग्नेटाइज्ड, जिसको हम मैग्नेटाइज कर सकते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज उसके अंदर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। So substances which are paramagnetic are those which are unpaired, having unpaired electrons in the atom. On the other hand, diamagnetic substances are those in which all the electrons are spin paired. Diamagnetic substance के अंदर में क्या होगा? जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो सब पेयर्ड रहेंगे। ठीक है, in the case of iron, cobalt and nickel, the unpaired electron spins are much more pronounced. जैसे हमने देखा है आयरन, कोबाल्ट और निकेल, इसके अंदर में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा है। ठीक है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, as a result these elements are more paramagnetic than the rest of the elements. These elements are therefore termed as ferromagnetic, that they can be magnetized. यहाँ पर देख रहे हैं आप, आयरन है, आयरन के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। कोबाल्ट के अंदर में आप देख रहे हैं कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। So in this case, ferrous, cobalt, in all these elements, number of unpaired electrons are more. Iron, cobalt, nickel, the unpaired electrons or unpaired electron spin are much more pronounced. जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो अनपेयर्ड होते हैं। ठीक है, therefore as a result of this they are having ferromagnetic properties. यहाँ पर देखते हैं हम स्कैंडियम, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 है। टिटेनियम के अंदर में देखते हैं D1 कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल
एम्प्टी है तो दैट कंपाउंड विल बी एम्प्टी है या अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर में नहीं है तो कंपाउंड विल बी कलरलेस। यहाँ पर देखते हैं जिंक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल मीन्स देयर विल बी नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। डिटेल अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये कंपाउंड अब देखेंगे कि कलरलेस। कॉपर है, कॉपर की एक स्टेट व्हाइट कलर के अंदर में आती है, ठीक है। कॉमन जो देखते हैं वो कौन सा कलर होता है कॉपर के अंदर में हम जो देखते हैं? यस, कॉमन जो कलर देखते हैं कॉपर का कौन सा देखते हैं? गोल्डन। यस, नहीं मेटल की बात हो, साल्ट के बारे में बात करते हैं। ये कॉपर मेटल के बारे में बोल रहे हैं आप। गोल्डन कलर थोड़ा सा व्हाइट। जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं वो ये देखते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है। ब्लू। ब्लू, ब्लू विट्रोल जिसको हम बोलते हैं, नीला तोतिया जिसको कहते हैं। इट हैज गॉट सम ऑफ द फंगिसाइडल प्रॉपर्टीज। फंगस को किल करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं कॉपर सल्फेट को, ठीक। प्लांट्स वगैरह के ऊपर भी छिड़कते हैं बहुत हद तक हम उसको, ठीक है। बहुत सारे यूजेस है कॉपर सल्फेट के, ठीक है। तो ये कॉपर ब्लू है, ठीक है। D9 one unpaired electron is there, therefore it is blue. यहाँ पर देख रहे D10 all electrons they are paired, no unpaired electron, so it will be colorless. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब में अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, ठीक है। सब में अनपेड कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए दे आर शोइंग कलर्ड। कंपाउंड्स आर कलर इफ दे आर हैविंग अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रिलेटेड विद देम। अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर में, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के अंदर में अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, then they come the such type of compound they will be colored. Otherwise if electrons they are paired, so such type of or fully filled or completely empty, then such type of compound will be colorless. यहाँ पर देख रहे हैं कि completely filled है, colorless compound है। यहाँ पर देख रहे हैं कि colorless compound है, number of unpaired electrons 0 है बिल्कुल। बच्चे भी जो एलिमेंट्स है इसके अंदर में कहीं ना कहीं अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, देयरफॉर दे आर कलर्ड। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दे विल अगेन डिपेंड अपॉन दिस नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तो स्कैंडियम को अगर आप देख रहे हैं तो 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, सो इट विल बी नॉट शोइंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। टाइटेनियम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 4 5 अगेन 5 एंड ऑल दिस। तो जहां पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो वहां पर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखने के लिए मिलेंगी। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इट विल नॉट शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो हमने देखा है आयरन है, आयरन के अंदर में 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, हियर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। कोबाल्ट के अंदर यहाँ मिस प्रिंटिंग हुई है, छोड़ दिया उसने। निकल 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो देयरफॉर दिस कंपाउंड these metals are said to be ferromagnetic in nature. ठीक है, the rest of the part we may continue in the next period. If you have any difficulty you may ask. Yes? नो सर। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन वगैरह ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं क्या है ये भी आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि इसी के ऊपर से हम उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड की डाइपोल मोमेंट कितनी है वो कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। और एग्जाम में कभी कभी आयंस भी दे देता है, जैसे Ti3+ दे दिया, Ti3+, देन इट इज आस्क्ड वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। पूछा जाता है कि Ti3+ है, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, किस तरह से है ये, इस तरह से पूछा जाता है। तो वहां पर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन उसका समझ में आना चाहिए, ठीक है। जब कब बता सकेंगे डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, जब हमको उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखने आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन है या नहीं है ये हमारे समझ में आएंगे तो लिख सकेंगे। वैसा ऐसा दिखने से थोड़ी हमारे समझ में आ जाएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है या नहीं है उसके अंदर। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है
किस तरह का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे समझ में आना चाहिए और अनपेड इलेक्ट्रॉन्स में कितने हैं ये हमारे समझ में आना चाहिए। ठीक है, शुड आई स्टॉप हियर नाउ? ओके, jazakallah, thanks for patient listening. Thank you. We'll meet in the next tomorrow with this magnetic properties. Some of the part of magnetic properties it will still remaining, that will be continued in the next period. Okay.